everyone. My name is Madhukar. I am assistant professor at Krishna Engineering College, Ghaziabad. In today's lecture, we will discuss HTML, list, tables, and images. First one, what is HTML? Okay, so here HTML refers to the hypertext markup language. It is a kind of language which is being used to design web pages. Okay, so basically it is a standard markup language, okay, for creating web pages. Generally, HTML was created by Tim Berners-Lee. Okay, that is Tim Berners-Lee who created World Wide Web also, है ना, in 1991. But actual में जो इसका standard version जो आया था वो publish हुआ था 1995 में. Then everybody started using HTML to create web pages. It generally describes structure of a web page. Okay, and how we can basically describe the structure? So it consists series of elements, and elements are also known as basically opening tag and closing tags. Okay, and HTML elements tell the browser how to display the content, because with the help of this element we are able to display the content, because it helps us to basically create build the web pages. These are all the basic building blocks of the HTML web pages. Okay, next है basic. HTML has also predefined tags, okay, which help to create web contents. Okay, next यहाँ पे terms हैं कुछ hypertext, जैसे H denotes hypertext. Okay, hypertext markup language. So what is hypertext basically? Hypertext refers to basically to the way in which web pages are linked together. मतलब क्या है कि if you are creating any websites, then definitely you will create web pages and you will link those web pages to create a website, because websites basically are the collection of web pages, right? तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली द लिंक अवेलेबल ऑन द वेब पेज इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट, जो कि क्या करता है बेसिकली उन वेब पेजेस को लिंक करता है टुगेदर, और उस लिंक को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं. दैट हेल्प्स टू लिंक वेब पेजेस. ओके, एंड HTML is a markup language, which means you use HTML simply markup as a text document with tags and tell a web browser how to structure it to display. मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली हाइपर टेक्स्ट यूज कर रहे हो टू लिंक वेब पेजेस, एंड यू आर यूजिंग मार्कअप लैंग्वेज बेसिकली, है ना, टू क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स विद द टैग्स. और वो क्या बता रहे हैं वेब ब्राउजर को, बेसिकली इट शोज द स्ट्रक्चर हाउ टू डिस्प्ले सच कंटेंट. ओके, नेक्स्ट है HTML टैग्स. ओके, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं. ठीक है, तो HTML के पास क्या अपने खुद के टैग्स हैं टू फॉर्मेट द कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए इसके खुद के कुछ टैग्स हैं. ठीक है, ये टैग्स जो है वो हमारे एनक्लोज है विद एन एंगल ब्रेसेस, यानी कि जो हमारे ये हैं ये हमारे एंगल ब्रेसेस हैं, इनके अंदर जो नेम है वो टैग नेम है जो कि एनक्लोज्ड है. ठीक है, इन्हीं टैग्स का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, वी बेसिकली डिज़ाइन आर कंटेंट, वी बेसिकली डिज़ाइन द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज. ओके, वी क्रिएट डॉक्यूमेंट. ओके, कुछ बेसिक टैग्स के बारे में बात करते हैं. सम बेसिक टैग्स सबसे पहले आता है डॉक टाइप. इट मीन्स दिस टैग बेसिकली टेल्स व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप यू आर यूजिंग. मतलब अगर इफ यू आर यूजिंग HTML, then definitely you can write doc type HTML, means so that browser could know कि आप किस टाइप के लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, किस टाइप के डॉक्यूमेंट का यूज़ कर रहे हो. डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, मतलब आपका HTML है या आपका XML डॉक्यूमेंट है, किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, राइट. तो दैट्स व्हाई वी यूज दिस पर्टिकुलर. if you don't mention that particular tag, so it is okay, means there is no need to mention. If you are mentioning, then it's okay, it's a good writing practice. Okay, but it is optional, right. Next, HTML. This is the front, this is the basic tag, that is, it is the, you can call it as a gate of that particular content. तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपने HTML के कोड को स्टार्ट करते हैं. मतलब ये लिखने के बाद अगर ये ऑप्शनली आपने नहीं लिखा है, then definitely you have to use HTML to start that. Every tag, either it is a body tag, title tag, and every tag lies inside HTML tags. Okay, HTML element, right. So this tag encloses the complete HTML document, mainly comprised of document header, which is represented by head, these header tags or header element, document body, which is shown by the body tags. So these are all tags which comprises or which basically lie in the HTML tag. Okay, so definitely we start with the HTML tag, and then the second one is, as it is mentioned here, head tag.
तो दिस टैग इज बीइंग यूज्ड टू रिप्रेजेंट हेडर्स, यानी डॉक्यूमेंट्स का जो हेडर होगा वो इस टैग के थ्रू रिप्रेजेंट होगा. ओके, so which can keep other tag as well like title, link, and we can also use these tag also in particular header tag. Okay, next is title, right? With the help of this particular tag, basically we can give title to our web page. Okay, means this title tag comes inside the head tag. means इस टैग के अंदर आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर टाइटल टैग का यूज कर सकते हो, और इस टाइटल टैग के थ्रू आप कर सकते हो उस पर्टिकुलर वेब पेज को एक टाइटल शो करा सकते हो जो कि आपके कंटेंट पे शो होगा. राइट, नेक्स्ट इज बॉडी टैग. आफ्टर HTML टैग, आफ्टर title tag, head tag, there is also another tag, it is known as body tag. With the help of body tag, basically we can give the rest of the content, or we can write the rest of the code in this particular body tag. Whatever you are writing, whatever you are giving, or whatever you are, even you can also add some other language content as well, like JSP. Basically you can use a Java content or Java code in this particular tag. Okay, so this tag represents the documents body which keep other HTML tag as well. Okay, whatever the remaining code you are writing, you can add in this particular body tag, like headings, division, paragraphs, etc. There are some other tags also, though you can add those tags in the body tag. P tag basically represent paragraph you can write for your web page. Okay, next one is HTML elements. Okay, the HTML elements basically are made up of using tags. So you have to use star tag and you have to use end tag as well. Okay, so this complete structure shows the element, means you are using tag, opening tag, that is with the help of tag name, and then the content goes here, whatever content you are writing. तो आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर एरिया में अपना कंटेंट शो कर सकते हो, एंड देन आपको क्या करना है, क्लोजिंग टैग का भी यूज़ करना है. तो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर बेसिकली कंप्राइजेज एलिमेंट्स. ओके, HTML एलिमेंट. यहाँ पे एक एग्जांपल है, लेट्स सी. document type tag we have used here, that is it is showing what kind of language type we are using, that is we are using HTML. Okay, but I have told you it is optional. आपको यूज़ करना है करो, नहीं करना है इट्स ओके, बट गुड प्रैक्टिस है राइटिंग की, क्योंकि क्या होता है कुछ ब्राउज़र आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन से टाइप की लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं. दैट्स वाई इट इज़ अ गुड राइटिंग प्रैक्टिस कि आप इस पर्टिकुलर टैग का भी यूज़ करो अपने वेब पेज पे. ओके, then head HTML tag, because we definitely we have to start with HTML tag, क्योंकि every content or other tags lie in the HTML tag. Then head tag to give heading, and to give title we are using title tag, head tag closed. Then we start body tag as. Okay, in body tag we are using different content. Okay, like we are using heading, we are using paragraph tag to give paragraph, we are using heading tag to give heading, and then the body tag is closed and the HTML tag is in closed. मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है हमारा, if you are using opening tag then definitely you must have to use closing tag as well. Okay, कुछ टैग ऐसे भी हैं जहाँ पे हमें क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ अ प्रैक्टिस कि आपको ओपनिंग टैग है तो उसका अगर क्लोजिंग टैग है देन यू हैव टू यूज़ दैट पर्टिकुलर टैग. बट क्या होता है ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ पे किसी टैग के क्लोजिंग टैग है नहीं, तो ऐसी रिजिडिटी नहीं है कि आपको क्लोजिंग टैग भी बहुत ज़रूरी है यूज़ करना. ओके, कभी कभी नहीं भी होता है, देन इट विल डेफिनेटली रन फाइन. ओके, नेक्स्ट है कुछ और देखते हैं एलिमेंट या टैग्स के बारे में, जैसे कि BR एलिमेंट. दिस पर्टिकुलर एलिमेंट बेसिकली डिफाइंस अ लाइन ब्रेक. अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट के बीच BR लिखा हुआ है, ओके, देन डेफिनेटली वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कंटेंट को ब्रेक कर देगा, यानी उसको नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देगा. देन इट विल शो द फर्स्ट इन द फर्स्ट लाइन, द रेस्ट कंटेंट इन द फर्स्ट लाइन एंड द रिमेनिंग कंटेंट इन द सेकेंड लाइन. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है HR टैग. तो इट इज़ एन बेसिकली एम्प्टी टैग. ओके, इसका कोई भी एंड टैग नहीं होता है, जैसे अभी था कि हमें एंड टैग का यूज़ करना है, तो लेकिन इसमें ऐसी रिजिडिटी नहीं है कि आपको एंड टैग का भी यूज़ करना है, क्योंकि कुछ टैग ऐसे भी हैं जिनका सिर्फ ओपनिंग है, क्लोजिंग टैग नहीं है. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास PRE प्री. ये क्या करता है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को डिफाइन करता है. अगर आपने जैसा फॉर्मेट बना के दिया है अपने कंटेंट को या अपने टेक्स्ट को, तो ये उसी प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में क्या करेगा, वो उस कंटेंट को डिस्प्ले करा देगा. ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखते हैं. दिस इज बेसिकली P. एक P टैग मैंने यूज़ किया टू शो पैराग्राफ, राइट.
अब पैराग्राफ को मैंने क्या किया, इसके अंदर बी आर टैग का यूज़ किया। अब बी आर टैग क्या करेगा, इस पर्टिकुलर टैग, ये जो मैंने लिखा है कोड, इनको क्या करेगा, लाइन बाय लाइन शो करना स्टार्ट करेगा। इट इज विजिबल इन लाइन बाय लाइन, जैसे कि दिस, फिर यहाँ पे नेक्स्ट में आएगा अ पैराग्राफ, नेक्स्ट एंड देन विद लाइन ब्रेक्स, विद लाइन ब्रेक्स, दिस इज हाउ इट विल बी विजिबल, राइट। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एच आर टैग का यूज़ किया, बेसिकली इट इज एन एम्प्टी टैग, उसके अंदर हमने एक हेडिंग टैग यूज़ कर लिया। फिर हमने एक प्री टैग का यूज़ किया है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में ही हमारे ये कंटेंट विजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास HTML लिस्ट। ओके, हाउ टू क्रिएट लिस्ट इन HTML वेब पेज, ओके, इन HTML लैंग्वेज, राइट। तो अब इसमें कैसे हम लोग क्रिएट करें लिस्ट को, सबसे हमारे पास 3 फॉर्मेट होते हैं। बेसिकली क्या करता है, ये आइटम्स को क्या कर सकता है, ग्रुप करने के हेल्प करता है, क्योंकि ऑब्वियसली लिस्ट जब हम बना रहे हैं तो हम वी आर ग्रुपिंग आइटम्स, right? It has 3 forms, it has 3 types. First one is you can basically create ordered list in some sort of order. Unordered list, you can create some sort of unordered list जिसमें आपको कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, आप जैसा लिखोगे कंटेंट वैसा ही विजिबल होने स्टार्ट होगा। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, बेसिकली इट शोज सम डिस्क्रिप्शन, ओके, टू दोज पर्टिकुलर लिस्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, डेट इज फर्स्ट वन इज ऑर्डर लिस्ट, राइट। एंड ऑर्डर लिस्ट ऑलवेज स्टार्ट विद द OL। हमें क्या करना है, ऑर्डर लिस्ट अगर आपको बनानी है देन डेफिनेटली यू विल स्टार्ट विद OL टैग, मतलब आपको यहाँ से OL टैग का यूज़ करना है एंड देन यू विल स्टार्ट योर कंटेंट। अगर आपको कंटेंट लिखना है तो LI, आप उसके अंदर लिस्ट के अंदर आइटम डाल सकते हो एंड देन एनी हाउ यू हैव टू क्लोज OL। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट और ऑर्डर लिस्ट। ओके, ईच लिस्ट स्टार्ट विद द LI टैग। जितना भी आइटम होंगे लिस्ट के वो हमारे LI टैग से ही स्टार्ट होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे लिखता हूँ IT, तो ये क्या होगा, आपको क्लोज किया तो ये आइटम पहले शो हो जाएगा, यानी ये फर्स्ट आइटम हो गया लिस्ट का। ऐसे ही करके आपको जितने आइटम आपको ऐड करने हैं, देन ईच एंड एवरी आइटम मस्ट स्टार्ट विद LI टैग। ओके, दिस आइटम विल बी मार्क्ड विद द नंबर्स बाय डिफॉल्ट, यानी कि अगर आप कोई भी इसमें ऑर्डर देने के लिए फॉर्मेट यूज़ नहीं करते हो देन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, 1 2 3, दिस इज हाउ इट विल मेक योर लिस्ट। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं, OL टैग का यूज़ किया है, ठीक है। देन लिस्ट ऑर्डर बना, हमें ऑर्डर लिस्ट बनानी है OL, और आइटम्स ऐड करने हैं लिस्ट में, तो हमें क्या किया, LI टैग का यूज़ किया है। ओके, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। एज अ नेम सजेस्ट कि हमेशा क्या होता है, अनऑर्डर्ड में हमारे आइटम्स अनऑर्डर्ड ही रहते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होगा। जैसे कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस फॉर्म में नहीं करते, या तो इसमें हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये डॉटेड से स्टार्ट होता है, ब्लैक सर्कल से, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट हमेशा किससे स्टार्ट होती है, विद UL, यानी O से OL ऑर्डर्ड, और अनऑर्डर्ड हुआ तो U रिप्रेजेंट अनऑर्डर्ड। आप क्या कर सकते हो, UL का यूज करके अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। डेफिनेटली इफ यू वांट टू क्रिएट एन अनऑर्डर लिस्ट यू विल स्टार्ट विद UL टैग, ठीक है। ईच लिस्ट आइटम ऑलवेज स्टार्ट विद LI टैग, जस्ट लाइक ऑर्डर लिस्ट, राइट। बट in order list and unordered list there is a different, you have to use OL in order list and UL in unordered list, right. This is the example, this is how you can create your unordered list, right. Means you have to use UL tag to start unordered list and then LI tag to give items to this particular list, okay. This is how you can create. तो इसका जो लिस्ट होगा वो आपका सिंपल कॉफ़ी, एक यहाँ पे टी, मिल्क, दिस इज हाउ इट विल बी विजिबल, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ओके। अब इसमें क्या होता है कि ये जो लिस्ट होती है बेसिकली ये हर एक आइटम का एक डिस्क्रिप्शन देती है। मतलब आप क्या कर सकते हो, एक आइटम आपने लिखा, आप उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हो इन द नेक्स्ट फॉर्म, ओके। तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इन लिस्टों में कॉफ़ी अगर मैंने लिखा है तो इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिंपल एक नाम है, एक आइटम है दैट इज विजिबल हियर। बट इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट इफ यू आर गिविंग नेम टू दैट पर्टिकुलर आइटम यू कैन ऑल्सो गिव डिस्क्रिप्शन टू दिस पर्टिकुलर कॉफ़ी आइटम, राइट। तो फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट यू विल स्टार्ट ऑलवेज विद DL टैग, अनऑर्डर्ड के लिए UL, ऑर्डर्ड के लिए OL एंड देन फॉर डिस्क्रिप्शन यू विल स्टार्ट विद DL टैग, राइट। तो DL टैग डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन लिस्ट and then TD tag defines the term name यानी item name।
आप बोल सकते हो. इफ यू आर राइटिंग TD टैग देन यू कैन गिव द नेम टू दिस पर्टिकुलर आइटम, बट फॉर डिस्क्रिप्शन यू विल यूज DD टैग. ओके, फॉर डिस्क्रिप्शन यू विल यूज बेसिकली DD tag. यानी आप with the help of DD tag you can describe or you can give description to those particular name, यानी to those particular DD item. Okay, this is the example how you can basically describe DL tag. सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे DL, right, and then आपको नेम देना है तो DT टैग, एंड देन आपको डिस्क्राइब करना है उसके बारे में तो DD टैग. जैसे आप देखते हो ना कि मेनू में अगर इफ़ यू आर सीइंग कि आपको कॉफ़ी आपने जब भी क्लिक किया तो आपको कॉफ़ी का मेनू शो हो जाएगा. उस कॉफ़ी के मेनू के अंदर भी उसका डिस्क्रिप्शन होगा कि ब्लैक कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी. वो उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन भी शो करा सकते हैं अपने पर्टिकुलर आइटम के बारे में. ओके, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर डिस्क्रिप्शन लिस्ट. अभी नेक्स्ट है हमारे पास HTML टेबल, राइट. तो HTML टेबल अलाउज वेब डेवलपर टू अरेंज डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स, राइट. क्योंकि टेबल में क्या होता है, हमारी एक टेबल जैसे किस तरीके से अगर मैं बनाता हूँ तो इसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं. यानी कि रोज है मेरी एंड दीज आर कॉलम्स. ओके, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ टेबल, ओके, इन HTML. ओके, एंड HTML कंसिस्ट ऑफ टेबल सेल्स इनसाइड रोज एंड कॉलम. यानी एक ये सेल है हमारी, दिस इज सेल, दिस इज सेल, ये सेल्स है हमारी. This is how you can create your table. तो okay, and then if you want to add table in your web page, तो then definitely you will start with table tag. यानी कि आपको क्या कौन सा टैग यूज करना है, टेबल का. ओके, टेबल टैग. This is how you can add your table. Okay, this is how you can add your table in the web page content, यानी in the document. Okay, तो always table always start with table tag. And then how to add rows into the table? Then you will use or we will use TR tag. TR tag यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है, टेबल रोज. इट डिफाइंस टेबल रोज. एंड देन इफ यू वांट टू गिव डेटा टू दोज रोज, यानी पहले आपने एक टेबल बनाया, उसके अंदर रोज दी, रोज के अंदर अगर आपको डेटा इंसर्ट करना है देन यू विल यूज TD टैग. यानी कि आप TD टैग का यूज करके क्या कर सकते हो, टेबल में डेटा इंसर्ट करा सकते हो. ओके, तो इट स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा. ओके, एंड इफ यू वांट टू गिव हेडर्स टू दोज टेबल, जैसे कि आपकी एक टेबल है, यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया, इसके अंदर मैंने क्या किया, 2 रोज यानी 3 रोज लिया मैंने और 3 कॉलम्स लिए, यानी 3x3. ओके, अब मुझे अगर टेबल रोज ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे एक फर्स्ट रोज ये हो गया, टेबल में डेटा डालना है, जैसे सपोज करो 1, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1. हेडिंग देनी है तो ये क्या हो जाएगा, ये बोल्ड हो जाएंगे, यानी कि ये हमारी क्या हो जाएंगे, हेडर्स. ये हमारी हेडिंग्स हो जाएंगी, ये हेडिंग्स. तो हम किस टैग का यूज़ करेंगे, TH का, और ये हमारे अदर डेटा है. तो TH टैग क्या होता है, क्रिएट सेल्स टू बी हेडर्स, यानी इस पर्टिकुलर सेल्स को ये क्या करेगा, हेडर बना देगा. ठीक है, अगर आप तीनों सेल का यूज़ करते हो, अगर तीनों को डालते हो TH के अंदर तो वो तीनों सेल्स हमारी हेडर्स बन जाए. जैसे आपने टेबल्स में देखा ना, ऊपर हेडिंग्स लिखते हैं फिर हम कंटेंट लिखते हैं, वैसे आप हेडर्स सेट कर सकते हो उनको, यानी टेबल्स के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टेबल बॉर्डर. टेबल में बॉर्डर कैसे लगाया जाए, राइट. तो टेबल में बॉर्डर ऐड करने के लिए हमें CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ता है. कास्केडिंग स्टाइल सीट होती है, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर बॉर्डर CSS की बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करके यू कैन बेसिकली ऐड टेबल बॉर्डर्स. जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पे टेबल हेडिंग, टेबल डेटा में मैंने क्या किया, एक बॉर्डर ऐड किया जो कि हमारा सॉलिड ब्लैक रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टेबल साइज. यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट विद द विड्थ और हाइट प्रॉपर्टीज टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ अ टेबल रो एंड कॉलम. यानी अपने टेबल को अगर आपको साइज मेंशन कराना है तो यू विल यूज स्टाइल एट्रीब्यूट दिस पर्टिकुलर. विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट यू कैन बेसिकली गिव विड्थ हाइट टू योर टेबल. जैसे कि इसमें देखो एग्जांपल में टेबल के अंदर मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया, जिसके अंदर विड्थ मैंने डाल दिया 100%. ठीक है, कंप्लीट विड्थ. हाइट मैंने डाल दिया 200 पिक्सल्स. ओके, उस हिसाब से क्या होगा, आपके टेबल का साइज मेंशन हो जाएगा और आपकी टेबल सो हो जाएगी और ये डाटा उस टेबल में आ जाएगा TD की वजह से. ठीक है, TD किस लिए यूज होता है, TD डिनोट्स टेबल डेटा. दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली ऐड डेटा टू योर टेबल. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि HTML टेबल्स कैन एडजस्ट द पैडिंग इनसाइड द सेल्स एंड आल्सो स्पेस बिटवीन द सेल्स. ठीक है, अब देखो टेबल स्पेस, सेल्स के बीच में जो स्पेस है ये है और ये हमारी होगी पैडिंग्स, राइट. ये हमारी पैडिंग्स हो गई. तो अब अपने आपको पैडिंग करना है, यानी आपको अपने डेटा को कैसे शो करना है, यानी टेबल्स के जो कॉलम्स हैं, है ना, जो सेल्स है बेसिकली वो कैसे शो होंगी. ठीक है, कितना स्पेस होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए उसका. ठीक है, कितना बेसिकली वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट स्पेसेस. तो सेल पैडिंग बेसिकली इज द स्पेस बिटवीन द सेल एजेस एंड द सेल्स कंटेंट, यानी जो सेल्स का एजेस है
ये और उसके कंटेंट जो है इनके बीच में क्या है, स्पेस कितना होगा, राइट। अभी आप देखो यहाँ पे ये है, ये हमारा एक टेबल है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे पैडिंग करनी है तो उसके बीच में हमें स्पेस देखना है कि कितना हमारे पास एजेस में और सेल्स के कंटेंट में कितना स्पेसेस है। तो टू ऐड पैडिंग ऑन द टेबल सेल्स यूज द CSS पैडिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी हमें CSS की पैडिंग प्रॉपर्टी ही यूज करनी है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, उसका 0 होता है साइज, ठीक है। एंड देन अगर आपको ऐड करना है तो पैडिंग आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से पैडिंग का यूज़ करके आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। 15 पिक्सल्स यहाँ पे पैडिंग दे रखी है, यानी कंटेंट के और एजेस के बीच में साइज किया जा रहा है, यानी ये। नेक्स्ट है सेल स्पेसिंग। इफ यू टॉक अबाउट सेल स्पेसिंग, तो टू चेंज द स्पेस बिटवीन द टेबल सेल्स यूज द, यानी इस टेबल के सेल्स के बीच में जो स्पेसेस है, ठीक है, ये जो स्पेसेस है, अगर इसके बीच में अगर आपको स्पेस ऐड करना है, ओके, देन यू विल यूज CSS बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी। यानी यहाँ पे हम CSS की पैडिंग प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, वैसे यहाँ पर अगर आपको स्पेस देना है सेल्स के बीच में, देन यू विल यूज बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी ऑफ CSS. With the help of this particular property, you can give spaces to the cells of this particular tables. With the help of this table, border spacing 30 पिक्सल्स, तो उसके बीच में क्या होगा, सेल्स के बीच में स्पेस आ जाएगा ये, ओके। विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्निक बेसिकली वी कैन गिव पैडिंग्स, वी कैन ऐड पैडिंग्स एंड वी कैन गिव स्पेसेस बिटवीन सेल्स। नेक्स्ट आता है कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन, ठीक है। तो HTML कैन हैव सेल्स दैट स्पैन्स ओवर मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स, ओके, ठीक है। स्पैन्स का मतलब है जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल है ये, तो इसने क्या किया, इट मर्ज टू बेसिकली 2 कॉलम्स, द डाटा ऑफ 2 कॉलम्स, राइट, एंड इन दिस पर्टिकुलर फर्स्ट रो। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या इसने क्या किया, 2 बेसिकली रोज का डेटा ऐड कर दिया इन द फर्स्ट कॉलम, तो इनको क्या किया इन्होंने, स्पैन कर दिया, यानी ऐड कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। तो टू मेक अ सेल स्पैन ओवर मल्टीपल कॉलम्स यूज अ कॉल स्पैन एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे टेबल हेडिंग में मैंने पहला हेडिंग ले रखा था, तो कॉल स्पैन किया गया ना 2, यानी कि ये 2 कॉलम्स को ऐड मर्ज कर देगा। अगर आपको 3 करना है कॉलम्स, तो यू कैन गिव 3 वैल्यूज एज वेल। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स, है ना, वी कैन गिव वैल्यूज, तो वी कैन बेसिकली ऐड कॉलम्स, ओके, और वी कैन स्पैन कॉलम्स टू मेक अ सेल स्पैन ओवर मल्टीपल रोज, तो वी यूज रो स्पैन। जैसे वहाँ पे कॉल स्पैन था, वैसे यहाँ पे रो स्पैन है। अगर आपको मल्टीपल रोज को स्पैन करना है, दिस इज हाउ वी आर स्पैनिंग मल्टीपल रोज। तो यहाँ पे 2 दे रखा है, तो इसका मतलब 2 रोज क्या होंगी, आपस में स्पैन हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 4 देता तो ये पूरा ये कंटेंट हमारा ऐड हो जाता है। अप्रैल कहाँ लिखा था, यहाँ बीच में लिखा जाता है अप्रैल, राइट, दिस इज हाउ, यानी कि 4 ओके। अभी 2 हैं, तो यहाँ पे 2, अगर मैं 4 वैल्यूज देता तो ये क्या हो जाता है, हमारे चारों रोज को स्पैन कर देता। तो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली यूज कॉल स्पैन एंड रो स्पैन इन योर HTML टेबल। नेक्स्ट आता है हमारे पास इमेजेस। HTML में हाउ वी कैन बेसिकली ऐड इमेजेस to your web page, or how we can improve basically and how we can change the appearance of a web page by using images. तो यहाँ पे HTML img tag का यूज़ करता है, ठीक है, to embed an image in a web page. We will use img tag. Okay, for each and every operation, for each and every content, there is an element. Okay, there are tags. So we definitely will use those tags to add or to change the property of that particular web page. तो img create holding space for the reference image. Okay, तो basically img tag empty होता है, it contains attributes only and does not have any closing tag. जरूरी नहीं है इसका कोई closing tag नहीं होता, आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली ये empty tag है, यानी इसका सिर्फ एक opening tag होता है। ओके, तो img tag has 2 required attributes, src and alt. ठीक है, specify the path to the image. इसमें क्या करते हैं हम, src के एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग उस इमेज का पाथ ऐड करते हैं, और ऑल्ट में हम लोग ऑल्टरनेट टेक्स्ट को पर्टिकुलर इमेज का को ऐड करते हैं, मतलब ऑल्टरनेट टेक्स्ट या ऑल्टरनेट इमेज भी डाल सकते हो। मतलब क्या है, अगर बाई चांस ये इमेज शो नहीं होती है, देन ऑल्टरनेटली क्या हो, ये वाला जो कंटेंट यहाँ पे जो हमने डाला है वो विजिबल हो जाए। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट ऐड इमेज। img टैग src है हमारा एट्रीब्यूट, उसके अंदर url का मतलब है पाथ, एंड ऑल्ट के अंदर क्या, ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ओके, दिस इज हाउ यू कैन ऐड इमेज टू योर वेब पेज। src एट्रीब्यूट की बात करते हैं, इस तरीके से src एट्रीब्यूट का यूज़ होता है जो कि पाथ बताता है यूआरएल का। जैसे कि ये इमेज है, ये कहीं ना कहीं ऑल्ट में क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी नाम ऑल्टरनेट देते हैं, वो वहाँ पे शो होने लग जाएगा। ओके, एंड देन विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप स्पेसिफाई कर सकते हो विड्थ एंड हाइट ऑफ एन इमेज।
यानी आपके इमेज कितना विड्थ रहे और कितनी हाइट के रहे, आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो SRC टैग का एट्रीब्यूट का यूज़ किया, उसका पाथ दिया इमेज का नाम कंप्लीट, ऑल्ट में मैंने कृष्णा कॉलेज डाल दिया कि क्या हो, अगर इमेज विजिबल ना हो तो वहाँ पे क्या हो जाए, हमारा कृष्णा कॉलेज हो। यहाँ पे आपका आएगा स्टाइल, स्टाइल में हमने क्या डाला, यहाँ पे स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ एंड हाइट 600 पिक्सल्स। ओके, या फिर आप इसको हटा सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ऐड विड्थ एंड हाइट टू दैट पर्टिकुलर पिक्सल्स और टू द पर्टिकुलर इमेज। ठीक है, टू यूज एन इमेज लिंक, पुट द इमेज टैग इनसाइड द ए टैग। Okay, this is how you can basically add image to your web page with the help of SRC and alt. Okay, thank you everyone.